دوستو، علم لدنی یہ کوئی عام علم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ انسانی زندگی دو جہتوں پر چلتی ہے، ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ ظاہری جہت وہ ہے جو ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، کتابوں سے پڑھتے ہیں اور استادوں سے سیکھتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے جو مدارس، جامعات اور درس گاہوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ ظاہری علم انسان کو دنیا میں کامیاب کرتا ہے، اسے عقل، سمجھ اور راستہ دیتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا علم ہے جو انسان کے باطن کو جلا بخشتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو کتابوں سے نہیں بلکہ دل سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو استاد کی زبان سے نہیں بلکہ اللہ کے فیض سے ملتا ہے۔ یہ وہ علم ہے جو آنکھوں کے سامنے نہیں بلکہ روح کے اندر روشن ہوتا ہے، اور یہی علم لدنی ہے۔ قرآن اور علم لدنی۔ قرآن کریم نے علم کی اہمیت کو بار بار بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یعنی اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ علم کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کچھ علم ایسا ہے جو براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ سورہ الکہف میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اسے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے علم لدنی کی حقیقت سامنے آتی ہے، یعنی ایک ایسا علم جو اللہ کے خزانے سے براہ راست عطا ہو، جس میں کسی کتاب، کسی استاد، کسی دنیاوی ذریعے کا دخل نہ ہو۔ اب آپ سوچیں، یہ علم کن لوگوں کو ملتا ہے؟ یہ علم ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ صرف ان خاص بندوں کو ملتا ہے جن کا دل صاف ہو، جن کے نفس کی صفائی ہو چکی ہو، جو دنیاوی حرص اور خود غرضی سے آزاد ہوں۔ یہ علم دراصل دل کی روشنی ہے، یہ علم دراصل روح کی غذا ہے، یہ علم دراصل اللہ کے قرب کی علامت ہے۔ صوفیہ کرام نے فرمایا ہے کہ ظاہری علم سے زبان روشن ہوتی ہے اور باطنی علم سے دل روشن ہوتا ہے۔ ظاہری علم ہمیں بولنے کا ہنر دیتا ہے، مگر باطنی علم ہمیں خاموشی میں اللہ کو سننے کا ہنر دیتا ہے۔ ظاہری علم ہمیں ظاہر میں رہنمائی دیتا ہے، مگر علم لدنی ہمیں چھپی ہوئی حقیقتوں کا ادراک دیتا ہے۔ دوستو، اگر ہم غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج کی دنیا میں لوگ زیادہ تر ظاہری علم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ڈگریاں، ڈپلوما، اسناد، سب کچھ حاصل کرنے میں لگے ہیں۔ یہ سب اپنی جگہ اہم ہے، مگر اصل سوال یہ ہے، کیا دل کا دروازہ کھلا ہے؟ کیا روح کو وہ علم ملا ہے جو سیدھا اللہ کے خزانے سے اترتا ہے؟ علم لدنی وہ روشنی ہے جو دل کے پردے ہٹا دیتی ہے، وہ نور ہے جو بندے کو حقیقت زندگی تک پہنچا دیتا ہے، وہ شعور ہے جو بندے کو اللہ کے قریب لے آتا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ کیا یہ علم محنت سے ملتا ہے؟ کیا یہ علم صرف کتابیں پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے؟ کیا یہ علم صرف ذہینوں والوں کو ملتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور کرم سے ملتا ہے۔ یہ ان دلوں میں ڈالا جاتا ہے جو نرم ہوں، جو جھکے ہوئے ہوں، جو عاجزی اور اخلاص کے سمندر میں ڈوبے ہوں۔ دوستو، جب ہم علم لدنی کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اور سب سے معتبر ذریعہ قرآن کریم ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسی میں ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ قرآن کریم میں ایک واقعہ ایسا ہے جو براہ راست علم لدنی کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ واقعہ سورہ الکہف میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ ہے۔ سوچئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا، جنہیں کلیم اللہ کہا گیا، جو ایک عظیم رسول تھے۔ لیکن اللہ نے انہیں یہ دکھایا کہ دنیا میں ایسا بھی علم ہے جو کتابوں سے نہیں بلکہ براہ راست اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی اور اللہ نے فرمایا فَوَجَدْنَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، یعنی پس ہم نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی تھی
और अपनी तरफ से इल्म सिखाया था। यहाँ गौर करने की बात यह है कि अल्लाह ने दो चीज़ों का जिक्र किया, रहमत और इल्म लदुन्नी। यानी पहले अल्लाह की रहमत नाजिल हुई, फिर दिल इल्म लदुन्नी के काबिल हुआ। यहाँ हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम की शख्सियत सामने आती है। वो ना कोई आम आलिम थे, ना किसी मदरसे के फारिग तहसील, बल्कि वो बराह रास्त अल्लाह के ख़जाने से इल्म पाने वाले बंदे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ सफ़र की ख्वाहिश की ताकि इस इल्म से सीख सकें, लेकिन हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि ये इल्म ज़ाहिरी अक्ल से समझने वाला नहीं है। ये इल्म तो वो है जो पर्दों के पीछे की हकीकत दिखाता है। फिर हम देखते हैं कि सफ़र में 3 बड़े वाक़यात पेश आए। कश्ती को नुकसान पहुंचाना, हज़रत ख़ज़र ने कश्ती के तख्ते में सुराख कर दिया। ज़ाहिरी तौर पर यह जुल्म लग रहा था, मगर हकीकत में वो कश्ती गरीब लोगों की थी और बादशाह उनकी कश्ती छीन लेता। इस सुराख की वजह से कश्ती बच गई। लड़के को कत्ल करना, हज़रत ख़ज़र ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा चौंक गए कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो बच्चा आगे चलकर अपने वालिदैन को कुफ्र और गुनाह की तरफ ले जाता। अल्लाह ने उसे दुनिया से उठा लिया और वालिदैन को उसके बदले नेक औलाद अता की। दीवार तामीर करना, हज़रत ख़ज़र ने एक बस्ती में जाकर दीवार सीधी कर दी, हालांकि अहले बस्ती ने खाना तक न दिया। हज़रत मूसा ने कहा आप मजदूरी ले लेते, लेकिन असल में उस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना छुपा हुआ था। अल्लाह ने चाहा कि वो बड़े होकर खुद उसे निकालें। ये तीनों वाक़यात हमें ये सबक देते हैं कि ज़ाहिरी आंखों से नज़र आने वाली हकीकत असल हकीकत नहीं। जो चीज़ हमें जुल्म लगती है वो दरअसल अल्लाह की रहमत हो सकती है। जो चीज़ हमें नुकसान लगती है वो असल में फ़ायदा हो सकती है, और जो चीज़ हमें छोटी लगती है उसके पीछे अल्लाह की बड़ी हिकमत हो सकती है। यही है इल्म लदुन्नी, यानी हकीकत के पर्दे उठा देना। दोस्तों, यहाँ एक नुक्ता समझने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे जलीलुल क़द्र नबी भी इस इल्म पर सब्र ना कर सके, क्योंकि यह इल्म अक्ल के पैमानों से समझा नहीं जा सकता। ये सिर्फ अल्लाह की अता से, उसकी रोशनी से और दिल की सफाई के बाद मिलता है। इसलिए हज़रत ख़ज़र अलैहिस्सलाम ने बार बार कहा कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। ये सबक हमें भी मिलता है कि इल्म लदुनी के लिए सबसे पहली शर्त है सब्र। अगर सब्र ना हो तो ये इल्म समझ में नहीं आ सकता। सो कुरान ने साफ अल्फाज में बताया कि वह अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, यानी हमने उसे अपनी तरफ से इल्म दिया। यही है असल बुनियाद। इल्म लदुनी अल्लाह के पास से आता है, और ये सिर्फ उन दिलों को मिलता है जो अल्लाह की रहमत के दरिया में डूबे हों। याद रखें, किताबों का इल्म ज़रूरी है, लेकिन कुरान का पैगाम है कि एक दर्जा ऐसा भी है जहां इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की अता होता है, और वही इल्म इंसान को हकीकत के समंदर में ले जाता है। ये इल्म कैसे मिलता है? ये इल्म सिर्फ उस शख्स को अता होता है जिसने अपने दिल को जंगालूद ख्वाहिशात और गुनाहों से पाक किया हो। जैसे आईने को जब साफ किया जाता है तो वो सूरज की रोशनी को खूबसूरती से मुनक़िस करता है, इसी तरह जब इंसान का दिल साफ होता है तो अल्लाह का नूर उसमें उतरता है। उस दिल पर इल्हाम, कश्फ और मार्फत के दरवाजे खुल जाते हैं। हज़रत ख़िज़र को अल्लाह ने वो इल्म दिया जो ज़ाहिरी असबाब से नहीं सीखा जा सकता। हमारे औलिया कराम जैसे हज़रत जुनैद बगदादी, हज़रत अब्दुल कादिर जीलानी, हज़रत अली हजवेरी, इन सब के बारे में आता है कि वो बाज़ औक़ात किसी किताब के बग़ैर ऐसी हकीकतें बयान करते जो आम अकल की गिरफ्त से बाहर होती। ये इस बात की दलील है कि इल्म लदुन्नी इंसान को सिर्फ अल्लाह के क़ुर्ब से मिलता है, किताबों से नहीं। याद रखें, किताबों का इल्म ज़रूरी है, लेकिन कुरान का पैगाम है कि एक दर्जा ऐसा भी है जहां इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की अता होता है, और वही इल्म इंसान को हकीकत के समंदर में ले जाता है। ये इल्म कैसे मिलता है? ये इल्म सिर्फ उस शख्स को अता होता है जिसने अपने दिल को जंगालूद ख्वाहिशात और गुनाहों से पाक किया हो। जैसे आईने को जब साफ किया जाता है तो वो सूरज की रोशनी को खूबसूरती से मुनक़िस करता है, इसी तरह जब इंसान का दिल साफ होता है तो अल्लाह का नूर उसमें उतरता है। उस दिल पर इल्हाम, कश्फ और मारिफत के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, आपने सुना इल्म की 2 किस्में हैं। एक ज़ाहिरी जो किताबों, उस्तादों और मदारिस से मिलती है, और दूसरी बातनी जो बराह रास्त अल्लाह के ख़जाने से दिलों में डाली जाती है। ये बातनी इल्म ही इल्म लदुनी है, वो नूर जो किताबों में नहीं बल्कि दिल की गहराई में उतरता है। हमने कुरान करीम की वो आयत पढ़ी
जहां अल्लाह ताला ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, यानी हमने उसे अपनी तरफ से खास इल्म अता किया। फिर हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना, जिसमें 3 बड़े वाक़यात के ज़रिए हमें यह सबक मिला कि जो चीज़ नुकसान लगती है वो असल में फ़ायदा हो सकती है, जो चीज़ जुल्म लगती है वो असल में रहमत हो सकती है, और जो चीज़ छोटी लगती है उसके पीछे अल्लाह की बड़ी हिकमत हो सकती है। इस वाक़े ने हमें यह सिखाया कि इल्म लदुन्नी ज़ाहिरी अकल से समझ में नहीं आता, बल्कि सब्र, दिल की सफाई और अल्लाह की रहमत के बाद ही अता होता है। और फिर हमने ये भी जाना कि औलिया कराम ने हमेशा यही फरमाया कि ज़ाहिरी इल्म ज़बान को रोशन करता है, मगर इल्म लदुन्नी दिल को रोशन करता है। दोस्तों, खुलासा ये है कि इल्म लदुन्नी अल्लाह की खास अता है। ये वो इल्म है जो इंसान को हकीकत की गहराई तक पहुंचा देता है और अल्लाह के करीब कर देता है। दोस्तों, लेकिन ये बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब हम आगे जानेंगे कि ये इल्म औलिया कराम की ज़िंदगियां किस तरह ज़ाहिर करता रहा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे अपने फ़िक्री बहरान के बाद इस इल्म को तस्लीम किया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को मदीना से अजमेर जाने का हुक्म इल्हामी तौर पर कैसे मिला। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने एक जोगी के दिल का हाल पढ़कर दुनिया को कैसे हैरान किया। ख्वाजा शाह सुलेमान तोनसवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इल्म को खिदमत खल्क और उम्मत की इस्लाह के लिए किस तरह इस्तेमाल किया। और हमारे अपने पीर सयाल लजपाल ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे ये पैगाम दिया कि असल दौलत करामत नहीं बल्कि अल्लाह का करम है। ये सब वाक़यात हमें बताते हैं कि इल्म लदुन्नी सिर्फ एक नज़रिया नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत है जो आज तक औलिया के ज़रिए दुनिया में रोशनी फैला रही है। दोस्तों, आगे आप ये सब सुनेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि हमारे औलिया का ये फैज़ कैसे चलता रहा, और सबसे बड़ी बात ये कि हम इस रास्ते पर कैसे चल सकते हैं। जी आइए सुनते हैं। अंबिया और औलिया को इल्म लदुन्नी कैसे मिला। अल्लाह ताला जब अपने किसी बंदे को मुंतखब करता है तो उसे बराह रास्त ऐसा इल्म अता करता है जो अक़ल या किताब से नहीं मिलता। अंबिया अलैहिमुस्सलाम को वही के ज़रिए ये इल्म मिलता है। औलिया को ये इल्म इल्हाम, कश्फ और मारिफत की सूरत में अता होता है। हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, आपको गौसुल आज़म और बाज़े अशहब कहा जाता है। आपके बारे में मशहूर है कि आप अक्सर वाज़ के दौरान ऐसी बारीक हकीकतें बयान करते जिन्हें सुनकर बड़े बड़े उलमा हैरान रह जाते। आपका एक फरमान है, मेरे मुरीद का दिल मेरे हाथ में ऐसे है जैसे किसी का दिल उसके सीने में होता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला ने आपको दिलों के अहवाल जानने वाला इल्म लदुन्नी अता किया था। मशाइख़ चिश्त ने इस खुदादाद बसीरत को ना सिर्फ अपनी रूहानी तरक्की के लिए इस्तेमाल किया बल्कि इसे मखलूक की हिदायत और ख़िदमत के लिए भी बरूए कार लाया। हज़रत ख्वाजा गरीबुन नवाज मईनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जब आप हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए तो इल्म लदुन्नी की बरकत ही थी कि आपने वहाँ के हिंदू पंडितों और फ़लसफ़ियों के सवालात का जवाब ऐसा दिया कि वो लाजवाब हो गए। आपके एक मुरीद ने सवाल किया, हजूर आपके पास इतना इल्म कहाँ से आता है? आपने फरमाया, ये सब मेरे रब की अता है जो दिल पर बराह रास्त इल्का होता है। दीगर औलिया के अक़वाल व करामात। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने इल्म किताबों से नहीं लिया बल्कि अल्लाह ने मेरे दिल पर खोल दिया। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये इल्म वो है जो ना कलम से लिखा जाता है ना कान से सुना जाता है बल्कि दिल पर उतरता है। इमाम मोहम्मद गज़ाली, जिन्हें हुज्जतुल इस्लाम का लक़ब दिया गया, ने अपनी मशहूर किताब अर-रिसालतुल लदुन्निया में इल्म लदुन्नी का दिफा किया। इस रिसाले की तख्लीक का मकसद उन उलमा के नज़रियात का रद्द था जो इल्म लदुन्नी और गैबी उलूम के मुनकिर थे। इमाम गज़ाली ने महसूस किया कि इंसानी अहवास और अक़ल जो कि इल्म कसबी के बुनियादी ज़राए हैं, हकीकत का मुकम्मल इदराक नहीं दे सकते। उनके बकौल
حتمی حقیقت تک رسائی کے لیے ایک تیسرے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ دل ہے۔ یہ علمی سفر دراصل ان کے فکری بحران کا نتیجہ تھا، جس میں انہوں نے فلسفہ، کلام اور فقہ کے عمیق مطالعے کے بعد بھی قلبی سکون اور حقیقت کا حتمی ادراک نہیں کیا۔ یہ ان کا کام اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا، جس نے باطنی اور الہامی علم کو ایک باقاعدہ علمی اور دینی حیثیت عطا کی اور یہ ثابت کیا کہ حقیقت کے ادراک کے ذرائع صرف ظاہر تک محدود نہیں۔ خواجہ غریب نواز کی زندگی میں علم لدنی کا سب سے بڑا مظہر ان کی ہندوستان آمد کے پیچھے کار فرما الہامی رہنمائی ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تو ایک پرکیف لمحے میں گنبد خضرا سے آواز آئی، اے معین الدین، تو میرے دین کا معین ہے، میں نے تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، وہاں کفر و ظلمت پھیلی ہوئی ہے، تو اجمیر جا، تیرے وجود سے ظلمت کفر دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا۔ یہ محض ایک بشارت نہیں تھی، بلکہ یہ علم لدنی کی ایک ایسی بلند ترین شکل تھی جس نے آپ کی پوری زندگی کی سمت متعین کی۔ یہ آواز دراصل ایک نبوی حکم اور الہامی اشارہ تھا جس نے خواجہ صاحب کے مشن کو ایک مقدس مقصد عطا کیا اور ان کی ہندوستان آمد کو ایک نبوی ذمہ داری کا رنگ دیا۔ اس الہامی حکم کے بعد خواجہ صاحب کو اجمیر کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، جس پر وہ فکری طور پر پریشان تھے کہ شہر اجمیر کہاں ہے اور اس کا رستہ کیسا ہوگا۔ اسی حالت میں آپ پر گنبد خضرا کی ٹھنڈی ہواؤں سے غنودگی طاری ہوئی اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جمال جہاں آرا سے مشرف فرما کر ایک نظر میں مشرق سے مغرب تک کا سارا عالم دکھا دیا۔ یہ روحانی بصیرت کے ذریعے اجمیر شہر، اس کا قلعہ اور پہاڑیاں بھی آپ کو دکھائی گئیں۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم لدنی محض ایک نظری علم نہیں ہوتا، بلکہ یہ عملی رہنمائی بھی فراہم کرتا ہے اور زمانی و مکانی حدود سے ماورا ہوتا ہے۔ اس نے خواجہ صاحب کی ظاہری پریشانی کو دور کر کے ان کے یقین اور ارادے کو مزید مختہ کیا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے ویسے تو بہت واقعات ہیں، لیکن ایک بابا فرید کے علم لدنی کا واقعہ جوگی آپ کی روحانی قوت کو پرکھنے کی نیت سے آپ کے پاس آیا اور دل میں یہ ارادہ کیا کہ اگر آپ واقعی کامل ہیں تو اس کے کانوں میں پہنی ہوئی مندریاں بالیاں خود بخود نکل کر زمین پر گر پڑیں۔ آپ کو اس کے دل کا حال روحانی بصیرت سے معلوم ہو گیا۔ آپ نے صرف نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور فوراً ہی اس کے دونوں کانوں کی مندریاں نکل کر زمین پر گر گئیں۔ یہ واقعہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اولیاء اللہ کا علم لدنی صرف مافوق الفطرت واقعات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس میں لوگوں کے باطنی احوال اور نیتوں کو جاننے کی صلاحیت بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ علم لدنی کی ایک ایسی شکل تھی جس نے اس دور میں رائج جادوگری اور جوک کے مقابلے میں حق کی برتری کو ثابت کیا۔ خواجہ شاہ سلیمان تونسوی، معروف پیر پٹھان، نے اپنے علم لدنی کو محض انفرادی کمالات کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ اسے معاشرتی اور اجتماعی فلاح کے لیے بروئے کار لایا۔ انہوں نے تونسا شریف میں ایک عظیم دارالعلوم اور ایک ہسپتال کی بنیاد رکھی۔ اس دارالعلوم میں قرآن، حدیث، فقہ کے ساتھ ساتھ سائنس، طب اور ہندسہ جیسے علوم بھی پڑھائے جاتے تھے۔ یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ علم لدنی کا مقصد صرف روحانی ترقی نہیں، بلکہ علم کا فروغ، معاشرتی اصلاح اور خدمت خلق بھی ہے۔ آپ نے سر سید احمد خان کو جہاد بل سیف کے بجائے امت مسلمہ کے علمی اور اخلاقی اصلاح کی نصیحت کی، جو آپ کی دور اندیشی اور ملت کی حالت کا گہرا فہم ظاہر کرتا ہے۔ خواجہ شہمس الدین سیالوی، معروف پیر سیال لجپال کا علم لدنی کے حوالے سے بنیادی فلسفہ ان کا یہ قول ہے، من طالب کریم امنا طالب کرامت، میں اللہ کے کرم کا طالب ہوں، کرامت کا طالب نہیں۔ انہوں نے وضاحت سے فرمایا کہ ان کی طبع مبارک کشف و کرامت کی طرف راغب نہیں تھی، بلکہ ان کا ذوق علم کے حصول میں کمال درجے کو پہنچا ہوا تھا۔ یہ نقطہ نظر ایک اہم روحانی ارتقاء کا اشارہ ہے۔ ابتدائی مشائخ نے تبلیغی ضرورت کے تحت کرامات کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن خواجہ شمس الدین جیسے بزرگوں نے یہ تعلیم دی کہ روحانیت کا اصل مقصد اپنے باطن کو سنوارنا اور اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ طرز عمل کرامت کو شہرت اور خود نمائی کے بجائے باطنی پختگی کا ثمر قرار دیتا ہے۔ اولیاء کی کرامات میں یہی علم جھلکتا ہے۔
वो ऐसी बातें जान लेते हैं जिनका ज़ाहिरी असबाब से जानना मुमकिन नहीं होता। करामत और इल्म लदुन्नी का ताल्लुक़। याद रखें, करामत सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती। करामत असल में उस इल्म लदुन्नी की झलक है जो अल्लाह अपने वली को अता करता है। जैसे हज़रत गौस पाक ने दूर बैठे एक मुरीद के दिल की कैफियत बताई, या हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने किसी सवाल का जवाब बग़ैर सोचे फ़ौरन दे दिया। हज़रत गौस पाक ने बचपन से ही रोज़ा रखना और वालिदा के पेट से ही कलाम करना जैसी करामात शामिल हैं। ताहम उनकी हकीकी अज़मत उनके इल्मी मुकाम में भी मुज़मिर है। औलिया का ये इल्म दरअसल इस बात की अलामत है कि अल्लाह जिसे चाहे बग़ैर किसी ज़ाहिरी वास्ते के इल्म अता कर सकता है, लेकिन ये इल्म सिर्फ उनके लिए है जो अपने दिल को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के सुपुर्द कर दें। दोस्तों, ये बात तय हो गई कि इल्म लदुन्नी औलिया की पहचान है और ये अल्लाह की ख़ास अता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम आम लोग भी इस राह पर चल सकते हैं? क्या हमारे लिए भी इल्म लदुन्नी का दरवाज़ा खुल सकता है? इल्म लदुन्नी के हसूल के लिए इंसान को कौन से मुजाहिदात, शराइत और रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं? दोस्तों, अब तक हमने जाना कि इल्म लदुन्नी क्या है, कुरान और सुन्नत में इसका जिक्र कैसे आया और औलिया किराम को ये इल्म किस तरह अता हुआ। लेकिन एक सवाल सबके दिल में है, क्या ये इल्म सिर्फ अंबिया और औलिया के लिए मखसूस है या एक आम मुसलमान भी इस राह पर कदम रख सकता है? याद रखें, अल्लाह ताला के ख़ज़ाने लामहदूद हैं, वो जिसे चाहे अपने फ़ज़ल से अता करता है, लेकिन इसके कुछ उसूल और रास्ते हैं। आइए उन्हीं को देखते हैं। एक, तज़किया नफ्स और दिल की सफ़ाई। इस मौजू पर हम मुकम्मल वीडियो बना चुके हैं। सबसे पहला और बुनियादी कदम है नफ्स की इस्लाह। नफ्स को काबू में लाए बग़ैर ये इल्म हासिल नहीं हो सकता। जब इंसान गुनाहों से तौबा करता है, दिल को हसद, कीना और तकब्बुर से पाक करता है, तो अल्लाह की मारिफत के दरवाज़े खुलने लगते हैं। कुरान में फरमाया गया है कि क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, यानी यकीनन कामयाब हुआ वो जिसने अपने नफ्स को पाक किया। 2, ज़िक्र इलाही की कसरत। दिल का आईना जितना अल्लाह के ज़िक्र से साफ़ होगा, उतनी ही हक़ाइक़ उस पर खुलेंगी। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दिल को ज़िक्र से ऐसे साफ़ करो जैसे लोहे को रगड़ कर ज़ंग साफ़ किया जाता है। जब दिल साफ़ हो जाता है तो उस पर अनवारे इलाही का नुज़ूल होता है और बंदा ऐसे उलूम सीखता है जो किताबों में नहीं मिलते। 3, कसरत तौबा और इस्तिग़फ़ार। जो शख्स अल्लाह से माफ़ी मांगता है उस पर अल्लाह की रहमत उतरती है। इस्तिग़फ़ार दिल की ज़मीन को नरम करता है ताकि अल्लाह की मारिफत का बीज अग सके। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह उसके हर गम को दूर कर देता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से उसे गुमान भी ना हो। ये रिज़्क़ सिर्फ मादी नहीं बल्कि रूहानी रिज़्क़ भी है जिसमें इल्म लदुन्नी शामिल है।